Good morning, dear students. Today we'll study about the spread of Buddhism. So, before starting the topic, we must know something about Kushans. Kushans came from China to India, and Kanishka was a very famous ruler of the Kushan dynasty. Still being a foreign ruler, Kanishka was a great king. He respected all the religions. He was the first foreign ruler who was secular. He respected all the religion, but he was more influenced by the Buddhism. So the Buddhist council, which was organized by him, was the fourth one. And in this council, scholars met, and the scholars were the persons who knew a lot about Buddhism. So at that time, Hinyan Buddhism was there, which was hard for a common person to follow. Hinyan Buddhism had the concept of eightfold paths, which represented the monastic life. But this path was very difficult for a common person to follow, and the eightfold path was right view, right speech, right action, right mindfulness, right intention, right effort. So these were the main principles of the Hinyan Buddhism. So that's why the fourth Buddhist council was conducted, because a lot of people faced a lot of problem in following this path, and hence the Mahayana Buddhism was adopted, which we'll talk about in the next slide. Ashok a poet who composed a biography of Buddha, the Buddha Charitra, lived in his court. So Ashok was a great poet. Not even he was a great poet, he was a great person. He was a intellect. He was a great person of intelligence. He used to चैलेंज दी पर्सनस. उन्हें चैलेंज करना अच्छा लगता था दूसरों को, और अगर कोई उनके चैलेंज को अडॉप्ट एक्सेप्ट भी कर लेता, एट लास्ट ही यूज टू विन. एंड ही कंपोज अ बायोग्राफी ऑफ बुद्धा. उन्होंने भगवान बुद्ध के जीवन के बारे में लिखा, उनकी बायोग्राफी डेवलप की, जिसका नाम बुद्ध चरित्रा है, विच इज़ नोन विद द नेम ऑफ बुद्ध चरित्रा. नाउ इन दिस मैप यू कैन सी द एम्पायर ऑफ कुशान्स. So the Kushan Empire extended from the Persia to the Patliputra. It includes the present-day Afghanistan, Pakistan, and the and northwest region of India. Mahayana Buddhism. So, what was Mahayana Buddhism? Mahayana Buddhism was a branch of Buddhism in which the follower was allowed to worship the statue of Lord Buddha, and these statues were made in Mathura and in Takshila. ये जो statues थी वो मथुरा और तक्षशिला में बनाई जाती थी. Earlier Buddha's presence was shown in sculptures by using sign. इससे पहले भगवान बुद्ध की जो presence थी वो दिखाई जाता था कुछ signs के द्वारा, जैसे पीपल ट्री दिखा दिया जाता था स्कल्पचर्स में. वाई पीपल ट्री वॉज शोन? बिकॉज जब भगवान बुद्ध ने मेडिटेशन किया तो वो एक पीपल के ट्री के नीचे ही किया था, और उन्हें वहाँ पर ही एनलाइटमेंट मिला. लेकिन महायाना बुद्धिज्म के बाद क्या हुआ? भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई जाने लगी थी और लोगों ने उनको पूजा करना शुरू किया. ये माना गया कि अगर हम भगवान बुद्ध की मूर्ति की भी पूजा करेंगे तो हम एनलाइटमेंट अचीव कर सकते हैं. So this was the Mahayana Buddhism. Now Bodhisattvas. So who were the Bodhisattvas? They were the person who already attained enlightenment. ये वो persons थे, या ये वो लोग थे जिन्होंने already enlightenment attain कर लिया था, इन्हें already ज्ञान हो चुका था. So they could live in isolation and meditate in peace, but they stayed among the people to guide them about the path of Buddhism. So वो अकेले रह सकते थे और अपनी meditation पे focus कर सकते थे, लेकिन फिर भी वो लोगों के बीच में रुके ताकि वो लोगों को बुद्धिज़्म के बारे में बता सके, इसकी टीचिंग्स के बारे में बता सके, और क्या करना चाहिए उन्हें वो बता सके. एज अ रिजल्ट बुद्धिज़्म स्प्रेड टू दी वेस्टर्न एंड ईस्टर्न रीजन्स ऑफ इंडिया. इसी के कारण बुद्धिज़्म जो रिलीजन था वो स्प्रेड हुआ वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट्स में इंडिया के, जहाँ पर हमें बहुत सारी केव्स नज़र आती हैं. वी विजिट दीज एरियाज. दीज केव्स वर कंस्ट्रक्टेड फॉर दीज बुद्धिस्ट मंक्स. और ये जितनी भी केव्स थी इनको कंस्ट्रक्ट किया गया था इन बुद्धिस्ट मंक्स के लिए. वाई दीज केव्स वर कंस्ट्रक्टेड? बिकॉज बुद्धिस्ट मंक ट्रेवल किया करते थे एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक. सो उनके फॉलोअर्स को लगा कि इनके लिए कोई जगह होनी चाहिए जहाँ पे ये आराम से रह सके. सो एज अ रिजल्ट केव्स वर कंस्ट्रक्टेड. नाउ हु कंस्ट्रक्टेड दीज केव्स? सम ऑफ द केव्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ किंग्स एंड क्वींस. कुछ केव्स तो राजा रानी के ऑर्डर पे बनाई गई, या फिर जितने भी बुद्धिस्ट मंक होते थे उनके जो फॉलोअर्स होते थे या सपोर्टर्स होते थे, दे यूज टू कंस्ट्रक्ट केव्स और केव्स फॉर देम. जैसे कि कोई भी मर्चेंट बिजनेस पर्सन हो गए या फिर फार्मर्स, ऑल सॉर्ट ऑफ सपोर्टर्स यूज टू
to construct the caves for them. So as we see, or as we go towards the Western Ghats, we find a lot of caves there as well. Buddhism also spread southeastward to the countries like Sri Lanka, Myanmar, Thailand, and other parts of Southeast Asia, including Indonesia. But in all these countries, oldest form of Buddhism was popular. So which was this oldest form of Buddhism? It was Theravada Buddhism. So according to this branch of Buddhism, a person was expected to live a monastic life. इस बुद्धिज़्म के इस ब्रांच ऑफ बुद्धिज़्म के अकॉर्डिंग ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि कोई भी अगर फॉलोअर है तो उसको एक मोनेस्टिक लाइफ जीनी पड़ेगी. ही हैज़ टू गिव अप और शी हैज़ टू गिव अप all the worldly things. And the main focus of this form of Buddhism was meditation. और इस बुद्धिज़्म में मेडिटेशन को की समझा गया अगर किसी को भी enlightenment attain करना है. Why? Because Lord Buddha attained the enlightenment by meditation only. Now the quest of pilgrims. First of all, we must know who are pilgrims. Pilgrims are the person those who travel to other areas for religious purpose. अगर कोई भी व्यक्ति किसी और जगह ट्रेवल करता है किसी रिलीजियस पर्पज़ के लिए तो हम उसको पिलग्रिम कहते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ पर्सन इज़ ट्रेवलिंग टू मक्का मदीना तो वो क्या है? पिलग्रिम है. इफ़ अ पर्सन इज़ ट्रेवलिंग टू वैष्णो देवी, पिलग्रिम. सो अगर कोई भी पर्सन ट्रेवल कर रहा है रिलीजियस पर्पज़ के लिए तो हम उसको पिलग्रिम बोलते हैं. सो देयर वर सेवरल pilgrims which traveled from the China to India, like Fa Yan, Xuanzang and I King. So ये तीनों ने ट्रेवल किया था चाइना से इंडिया में. एंड वाई दे ट्रेवल? बिकॉज दे वॉन्टेड टू नो अबाउट लॉर्ड बुद्धा. वो भगवान बुद्ध के जीवन के बारे में जानना चाहते थे और इसीलिए वो ऐसी जगह पर गए जहाँ पर भगवान बुद्ध की वो ऐसी जगहों पर गए जो भगवान बुद्ध के जीवन से रिलेटेड थी. एज वेल एज दे विजिटेड बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज और ये बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज में भी गए. Each of these pilgrims wrote of the dangers they encountered on their travels, which took years of the countries and the monasteries that they visited, and the books they carried back with them. So ये जितने भी pilgrims आए इंडिया में इन्होंने अपने बारे में लिखा, कैसा इनका एक्सपीरियंस था इस जर्नी का, कहाँ कहाँ वो इंडिया में गए एंड कौन सी मतलब which monasteries they visited. All these things they have written. So if we study about Xuanzang, तो जब वो इंडिया में आए और यहाँ से बुद्धिस्ट भगवान बुद्ध के बारे में बहुत कुछ उन्होंने बहुत कुछ जाना और बहुत सारी चीज़ें भी वो उनसे रिलेटेड लेकर गए. तो जब वो वापस जाना चाहते थे तो उन्होंने चाइना जाने के लिए लैंड रूट चूज़ किया. बट वाइल डूइंग सो when he was crossing river Indus, जब वो इंडस नदी को क्रॉस कर रहे थे तो उनकी बोट उसमें पलट गई. his boat capsized during that time. So वो अपने साथ 600 मैन्यूस्क्रिप्ट्स लेकर गए थे. एंड दीज what are मैन्यूस्क्रिप्ट्स वो बुक्स होती हैं जिनको हाथ से लिखा जाता है. एज एट दैट टाइम उस प्रिंटिंग वॉज नॉट देयर. उस टाइम प्रिंटिंग तो थी नहीं, तो स्क्राइब्स होते थे और वो ही अपने हाथों से बुक्स को लिखा करते थे और ऐसी ही बुक्स को हम मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं. तो जुआनजेंग अपने साथ 600 बुक्स लेकर जा रहे थे, मैन्यूस्क्रिप्ट्स लेकर जा रहे थे, जिसमें से कि 50 तो इंडस नदी में गिर जाती हैं और जो बाकी बची होती हैं वो अपनी पूरी लाइफ स्पेंड कर देते हैं उनको ट्रांसलेट करने में फ्रॉम संस्कृत टू चाइनीज. देन जुआनजेंग ऑल्सो मैंशंस दी एक्सपीरियंस अबाउट नालंदा. नालंदा एक बहुत ही बड़ा बुद्धिस्ट सेंटर था, लर्निंग सेंटर था और ये माना जाता है या ये कहा जाता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी या इस मोनेस्ट्री के बाहर एक गेट कीपर होता था एंड दैट गेट कीपर यूज टू आस्क वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस फ्रॉम द एंट्रेंस. सो जो भी उसके अंदर जाना चाहता, नालंदा में जाना चाहता, उससे गेट कीपर्स कुछ बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पूछते थे और हर 10 में से 7 या 8 लोग वो आंसर नहीं दे पाते थे. सो इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू एंटर इन नालंदा. बट दी एनवायरनमेंट इन नालंदा वॉज वेरी गुड. सारे टीचर्स जो भी थे वहाँ पर वो सब बहुत ही जीनियस थे अपने फील्ड में. दे यूज टू टॉक टू ईच अदर. अगर उन्हें किसी भी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करना होता, कोई डाउट क्लियर करनी होती तो एक दूसरे से बात किया करते थे. तो सच वॉज दी नालंदा यूनिवर्सिटी. नाउ विल स्टडी अबाउट द बिगिनिंग ऑफ भक्ति. So what was the concept of bhakti?
द कॉन्सेप्ट ऑफ भक्ति वॉज दिस: इफ अ डिवोटी इज worshipping a god with full devotion, then that god will, or that deity will appear in front of him in the form he desires. तो भक्ति का कॉन्सेप्ट ये था कि अगर कोई भी पर्सन अपने प्योर हार्ट के साथ अगर देती की पूजा करते हैं, लाइक शिवा, विष्णु और गॉडेस दुर्गा, तो ये माना जाता था कि उनके सामने भगवान प्रकट हो जाते थे उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में वो डिवोटी चाहता है. So during this time, the worship of certain deities, Shiva, Vishnu, and goddess such as Durga gained importance in Hindus. These deities were worshipped through bhakti, an idea that became very popular, as I already told you. In the sacred books of Hindus, the Bhagavad Gita, the idea of bhakti is present. So अगर हम भगवत गीता पढ़ें तो उसमें भक्ति का कॉन्सेप्ट बताया गया है. और भगवत गीता बेसिकली क्या है? इट इज़ द प्रीचिंग ऑफ लॉर्ड कृष्णा टू अर्जुना. ठीक है, ये एक तरीके का प्रीचिंग है, इसमें ये एक तरीका संदेश है जो भगवान कृष्ण दे रहे हैं अर्जुन को. एंड व्हाट ही सेड, वो कहते हैं कि तुम अपने सारे धर्मों को छोड़ो, तुम मुझ में डिवोट हो जाओ और मैं तुम्हें बताऊंगा असली धर्म क्या होता है. सो दिस कॉन्सेप्ट बिकेम वेरी पॉपुलर इन दी इंडिया. Those who followed the system of bhakti emphasized devotion and individual worship of God. So जो भक्ति को फॉलो कर रहे थे या भक्ति के मार्ग को फॉलो कर रहे थे, उन्होंने अकेले पूजा करना शुरू कर दिया और ये जो सेक्रीफाइसेस थी वो काफ़ी हद तक रुक गई थी. सो इट वॉज अ गुड थिंग. अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम ऑफ बिलीफ, इफ अ डिवोटी worships a chosen deity with a pure heart, the deity will appear. As I already told you, तो भक्ति के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई भी जो डिवोटी होता था, भक्त होता था, अगर वो अपने प्योर हार्ट के साथ और पूरे डिवोशन के साथ किसी भी देती की पूजा करे तो ऐसा माना जाता था कि वो देती उनके सामने प्रकट हो जाते थे उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में वो चाहता है. दैट्स ऑल. वॉच द वीडियो ट्वाइस एंड हैव अ नाइस डे.